you need to tell me how many pairs you're able to identify. People in mathematics should be able to identify and should not give a wrong answer. Let me take 4 charges, 1, 2, 3, 4. Q1, Q2, Q3, Q4 है हमारे पास, मान लेते हैं. So how many pairs you can identify? Well, let me join them by these lines. 1, 2, 3, 4. Is it only 4? If you mathematically calculate it, combination of 2 charges out of 4 charges is 4C2. 4C2 के हिसाब से 4 factorial upon 4 minus 2 factorial into 2 factorial आना चाहिए, which is 4 into 3 into 2 into 1 divided by 2 into 1 into 2 into 1. ये कट गया, ये कट गया, ये कटा, ये कटा, तो 6 पेयर्स हमें मिलने चाहिए. तो पांचवा और छठवां आइडेंटिफाई अभी आपको थोड़ा दिखने लगा होगा कि कहाँ पर पांचवा छठवां है. तो what we're going to do is we'll take this 1 pair, 2 pair, 3 pair, 4 pair, 5th pair is here and 6th pair is here. So we'll say R14, R12, R24, R23, R34, and this is R13 and R24 ले लेते हैं. ठीक है, छोटे नंबर्स हमने पहले लिख दिया ना. So now you should be able to write down. I am leaving it as an exercise. Please write down for each pair and add it up and get me this formula. So how will you write down a general formula for a collection of n charges? उसके लिए मैं लिखवा देता हूँ आपके लिए, and then you should be able to interpret the mathematical expression by writing it down and trying to see कि भाई जो मैं mathematical expression लिख रहा हूँ n charges के लिए वो सही है कि गलत है. तो you can able to find out in general for a collection of n charges. Please remember one thing, that when you are writing the energy of pairs of charges, please introduce the sign of the charges. ठीक है ना, उसके ऊपर बेस सवाल करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. If there is a collection of say n charges, q1, q2, q3 dot 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 up to qn, so you need to write down u is equal to sigma uij. There are 2 index numbers. देखो u11 is not allowed, u22 is also not allowed. u23 काउंट किया और u32 काउंट किया, एक ही बात है. तो इसलिए हमको 2 बार काउंटिंग नहीं करनी. जैसे अगर आपने u14 किया तो वापस u41 नहीं लिखने का, दोनों एक ही चीज होती है. तो ऐसे अगर करना हो तो इंडेक्स नंबर्स पर हम क्या कंस्ट्रेंट्स डालें. Right, first and foremost you are going to write I not equal to j, I ranging say from 1 up to n, j ranging from 2 to n minus 1 लिख सकते हैं. So हमें डबल इंडेक्सिंग करनी है, कॉमा n minus 1 कर देते हैं. तो I ranging from 1 to n, कॉमा j ranging from 2 to. ठीक है, तो हमने I not equal to j ले लिया है. आई और जे बराबर नहीं होने चाहिए, तो ये वाले टर्म सब चलेगा, है ना. और दूसरा, एक बार u23 आया तो फिर u32 नहीं आना चाहिए, क्योंकि u23 u32 एक ही बात हो जाती है. ठीक, तो therefore this is the way we have to write, and I should not be equal to j, and एक और काम कर सकते हो आप, या तो आई नॉट इक्वल टू जे रखो, आई ऑलवेज लेस देन जे करो, और आई रेंजिंग फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 करो, और जे रेंजिंग फ्रॉम 2 टू n करो. तो इससे क्या होगा कि आई हमेशा जे से छोटा होगा, तो ये रिपीटिंग नहीं होगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस नोटेशन, बिकॉज समटाइम्स दे माइट आस्क यू. देखो फिर से मैं क्लियरली बता देता हूँ. I not equal to j, I should be less than j, I should start from 1 and go up to n minus 1, j should start from 2 and go up to n minus n. ठीक है ना. तो इसका मतलब ये हो गया कि जब i को 1 लोगे तो j को 2 लेंगे, i को 2 लेंगे तो j को 3 लेंगे, एंड सो ऑन. इस तरीके से आप बिना रिपीटिशन के आप लिखते चले जा सकते हैं. ठीक है. पेयरिंग अप के लिए आप थोड़ा सा अलजेब्रा दिमाग लगाएंगे तो आप सॉल्व कर पाओगे. सो for a collection of n charges, for a collection of
n charges. What I've done is basically identified pairs Q1 Q2 Q2 Q3 Q1 Q3 4 अगर यहाँ पर है तो Q1 Q4 और सारे जितने पॉसिबल पेयर्स हैं वो अपने को लिखने हैं. So all the pairs has to be identified, written down. So I'll do 1 or 2 questions for you so that it becomes more clear to you that how we are going to apply. Calculate the electrostatic potential, ESPE. Look at that. मैं short form में लिखा है. Calculate the electrostatic potential energy of the charge configurations shown. Calculate the ESPE of the charge configurations shown. तो मैं एक सिंपल वाला ले लेता हूँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, Q Q Q और एक की डिस्टेंस R R R, फिर एक स्क्वायर ले लेंगे. आपको तो मैं बता ही चुका हूँ कितने टर्म्स होंगे. सब आइडेंटिकल चार्जेस ले लेते हैं, R R R R. ठीक. एक मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसमें रेगुलर हेक्सागन दे दूंगा, Q Q Q Q Q Q और एक के बीच में डिस्टेंस R R R R. दिस विल ड्यू एज होमवर्क, बट ये दोनों मैं लिखवा देता हूँ. इजी वाला मैं करा रहा हूँ, टफ वाला दे रहा हूँ. तो ये तो बहुत ही सिंपल है, जैसा मैंने आपने भी बताया कि भाई ये जो है ये 2 और ये 3 पेयर्स हैं और सब आइडेंटिकल हैं, तो इसलिए इसके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा. U इक्वल टू U12 प्लस U23 प्लस U13, जब सारे वैल्यू सेम ही है तो 3 टाइम्स KQ² बाहर हो जाएगा. इज इट नॉट? क्योंकि K Q1 Q2 बाय R, K Q1 Q2 बाय R, K Q1 Q2 बाय R 3 बार आ गए. इस केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा. तो 1 2 3 4 आइडेंटिकल है, तो U इसकी वैल्यू लिखेंगे 4 टाइम्स KQ² बाय R प्लस 2 टाइम्स KQ² बाय √2R. आई होप आई डोंट नीड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन कि √2R कहाँ से आया. दिस इज बेसिकली फ्रॉम पाइथागोरस. ये R है, तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल की लंबाई √2R हो जाएगी. हियर इन द 6 चार्जेस के लिए मैं 2 हिंट दे सकता हूँ आपको. एक तो ये कि भाई अगर मैं इधर पे सब जोड़ दूँ, मैंने पहले भी वेक्टर्स में बता चुका हूँ मैं आपको कि ये बेसिकली 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में टूट जाता है, तो इससे आपको सारे डिस्टेंसेस मिल जाएंगे. दूसरी बात क्या है कि 6 चार्जेस 6C2 दैट इज 6 × 5/2, 15 पेयर्स मिलने चाहिए. तो 15 पेयर्स को आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करके डालना है. ठीक है. इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द 15 पेयर्स, देन फॉर ईच पेयर राइट डाउन द वैल्यू, एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. थोड़ा सोचोगे तो आपको बन जाएगा ये. एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, एक क्यूबिकल अरेंजमेंट दे देता हूँ. क्यूबिकल अरेंजमेंट, तो क्यूबिकल अरेंजमेंट में कितने चार्ज होते हैं भाई, देयर आर 8 आइडेंटिकल चार्जेस. 8 चार्जेस Q ले लिया है. ठीक है. तो मैं क्यूबिकल अरेंजमेंट ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए. ये 2 होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ. ठीक. सो फाइंड दिस आउट. 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके बीच में डिस्टेंस R R R हो गए. तो there are 8C2 pairs, that's 80 to 7/2, that is 28 pairs हैं. So remember that in this particular question you need to identify 28 pairs. Identify them, they are not difficult, it's a good fun to do these problems. Try this as a homework and let me know in the next lecture. Please do post your homeworks, else I'll be calling up the parents and talking to all of them कि भाई ये क्या काम कर रहे हैं. इसमें ये होमवर्क करना है. पिछले वाला लेक्चर भी आपने पढ़ना है अच्छे से, और ये वाला भी, बिकॉज आफ्टर से अबाउट 5 or 6 lectures आई विल बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर, सो दैट व्हेन वी आर फिजिकली मीटिंग इन जुलाई, मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई में तो खोल देने चाहिए, वी शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट अप टू करंट इलेक्ट्रिसिटी तक. अगर मतलब हमने कर लिया, देन वी आर नॉट इन अ बैकलॉग, वी विल बी एबल टू कंप्लीट द कोर्स वेरी फास्ट. और नंबर ऑफ आवर्स में बढ़ा दूंगा, वी विल बी एबल टू डू इट, बट यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, स्टार्ट वर्किंग वेरी हार्ड.